Now, viewers, it's after days of speculation following Ajit Pawar's demise that Maharashtra's power transition is now falling into place. India Today has exclusive details on who will take charge when the oath will happen and why is it that the NCP has zeroed in on one name. Sources tell India Today that Sunetra Pawar has accepted the proposal to become Maharashtra's next Deputy Chief Minister. She will be retaining state, excise and sports, the key portfolios that were earlier held by Ajit Pawar. In the interim, Chief Minister Devendra Fadnavis will be holding the finance portfolio, with sources confirming that finance will return to the NCP right after the budget session. As per sources, the NCP Legislative Party meeting is also scheduled for Saturday at 2 p.m., where Sunetra Pawar is expected to be formally chosen as CLP leader. Her oath ceremony is slated for Saturday evening at 5 p.m., sealing the transition within hours. So, now let's take a look as to why are we looking at Sunetra Pawar being the chosen one. She, remember, emerged as the natural heir and consensus face at a moment of sudden succession vacuum. She brings an established political presence to the role, strong grassroots and institutional connect, the one with the masses, and a deep political pedigree within Maharashtra's power corridors. Now, from continuity to consolidation, the Pawar legacy will now be entering its next chapter with this very oath-taking ceremony. Well, that is the situation at this point of time. As we speak, the present situation and circumstances. Let's quickly put it into further context. During 2024 Lok Sabha elections, remember, the nation watched the Baramati battle very closely. It was Sunetra Pawar versus Supriya Sule. The Pawar family members were at loggerheads for the first time after the NCP split in that very year of 2024. Now, India Today's Rajdeep Sardesai back then had spoken to Sunetra Pawar. Listen in to that very conversation. First attempt at politics, are you enjoying it? मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप कह रही हैं आप एंजॉय कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये है कि पहली बार आप इस तरह की लड़ाई में लड़ रही हैं जहां दूसरी तरफ सुप्रिया ताई है। वहिनी और ताई के इस लड़ाई में आसान तो नहीं होगा? जी, आसान तो नहीं है, लेकिन आई हूँ, अभी लड़ रही हूँ। लेकिन ये तो लोगों ने हाथ में ली हुई लड़ाई है। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरी उम्मीदवारी लोगों की मांग थी। आपकी उम्मीदवारी लोगों की मांग थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम सुप्रिया ताई से मिले थे और उन्होंने कहा ये एक तरह से पारिवारिक लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। क्या राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। तो आप और उनमें कोई ये नहीं है, फाइट नहीं है? सच बताइए, ये तो परिवार टूट गया है। ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, रिश्ता अलग है, ये राजनीति अलग है। हमें ये जानना था कि 40 साल के बाद आपने फैसला लिया कि आपको चुनाव लड़ना है। 40 साल तक आप अजीत दादा के साथ में, 40 साल से करीब करीब आपकी शादी को हो चुका है। 40 साल के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको चुनाव में उतरना है, खुद उम्मीदवार के तौर पर? दादा ने जब ये अलग भूमिका ली और मुझे लगा कि दादा के साथ होना चाहिए, और वो मैंने राजनीति में आने का विचार किया। जो दादा पर आरोप लगे कई बार, उसके बाद आपको लगा नहीं कि राजनीति से, मतलब दादा खुद कई बार बोल चुके हैं कि राजनीति से उनका मन ऊब चुका था, आपने देखा कि वो कई बार इमोशनल भी हो चुके थे, आपका रिएक्शन उस पर क्या था? राजनीति में तो ये तो होता ही रहता है, आरोप प्रत्यारोप तो होने ही है, तो ये तो चलता ही है, राजनीति इसको एक ही कहते हैं ना। क्योंकि आज हम शरद पवार जी से भी मिले थे और शरद पवार जी ने कहा कि ये जो निर्णय लिया है ये दबाव में लिया है। बीजेपी ने दबाव डाला अजीत पवार पर कि आपकी पत्नी को लड़ाइए ताकि मेरी बेटी हार सके, और ईडी का दबाव था, ये उनके शब्द है। ये तो उनको ही पता होगा। पर कहीं ना कहीं जब ये इस तरह की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि परिवार आपका जो है वो एक तरह से, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल बिखर गया है? सब इस लड़ाई को देख रहे हैं कि एक परिवार जो सबको लगा एक साथ है, इतने जल्दी कैसे बिखर गया? इतने सालों तक तो ऐसा लगा था शरद पवार जी और अजीत पवार एक साथ हैं, अब अलग अलग पक्ष बन गए, इतनी कटुता आ गई, इतनी एक दूसरे के खिलाफ इतनी बिटरनेस क्यों? ये बिटरनेस है, कटुता है, या ये पॉलिटिकल? मुझे लगता है ये जो है ये राजनीति की लड़ाई है। राजनीति अलग है, रिश्ता अलग है। राजनीति में रिश्ता लाना
बुरी बात है, मुझे लगता है आप दुर्दैव बीच है। में भावुक हुई थी जब आप कहा गया कि आप बाहर से आई हुई है पवार वर्सेस सुले लड़ाई में। आपने हमने देखा कि आपने एक रिएक्शन दिया, आप काफी भावुक हो गई थी। क्या हो गया था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि ये बात सही नहीं है? नहीं, मुझे इसका आंसर नहीं देना। तो कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव। जब आपने ये निर्णय लिया, आज इतने दिनों के बाद सोचकर कभी सोचती है ये कहाँ मैं फंस गई, ये राजनीति में भाषण देना पड़ता है, इतने लोगों से मिलना पड़ता है, कहीं आपको लगता है कि कहीं गलती कर दी? नहीं, कभी कभी इतिहास एक मोड़ पे लाके रख देता है और हमें उसे फेस करना है।